पहले तो सबको हाय हेलो बोल दूँ ना। A very good evening, everyone. This is Anka Himani. So, as you all know, आज हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑब्सेस की ग्रैंड प्रीमियर को. Give it a huge round of applause, everyone. A film that has already made its mark across 4 languages: Hindi, Tamil, Telugu, and Malayalam. Presented by Jagraj Motion Pictures and Peter Wilson Entertainment, and produced by Jagdish Singh and Peter Wilson. Now is the time we all are waiting for. Now let's welcome the men behind and in front of this amazing project, the producer, the director, the lead hero, and one of the driving forces behind Obsess. Give it a massive round of applause to Peter Wilson in the house, everyone. Give it a huge round of applause. Welcome, sir. Welcome to be here. Questions, please. पीटर आपने पहले तो आपने दमदार एक्टिंग का जलवा दिखाया, डायलॉग्स की कमी लगी है आपके लास्ट में ना हो गई. जी डायलॉग्स बेसिकली कॉन्सेप्ट का एक रिक्वायरमेंट था मोस्टली. डायलॉग्स कम हमने बेसिकली सिचुएशनल कॉन्सेप्ट एंड डायलॉग्स के हिसाब से मोस्टली हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था. मोस्टली फिल्म में डायलॉग्स होते हैं तो आप साइलेंस में रह के किस तरीके से आप बॉडी लैंग्वेज के साथ आइज़ के एक्सप्रेशन के साथ अपने डिस्क्राइब कर सकते हैं. सो ये एक चैलेंज ये भी था और दूसरा था ओनली 2 कैरेक्टर्स. सो वो एक सिचुएशनल एंगल है डायलॉग्स अगर कम है तो. That's fine, you're talking, it's fine. Yeah, Sam. Yeah, absolutely. Hello, good afternoon. Yes, I'm the writer and co-producer for this film. My name is Sam Baria. When did he approach you or you approached him for this particular story? Okay, so we've started this company together, Jagraj Motion Pictures. It's based on 2 names put together. The 2 producers, which is Peter Wilson, which is originally known as Rajinder Gill, as a producer. Peter Wilson is a stage name. That's how we're going to recognize him from now on. And also Jagdish Singh. So half of Rajinder Gill's name and Jagdish's name we put together to Jagraj Motion Pictures. This is how we built this company together from the beginning. This is our first film under this banner. So as I was saying to ma'am earlier on my walking in here, this concept was dreamt by Peter Wilson himself. He had a dream in the morning and I was rudely interrupted by my yoga just so that he can tell me about his dream. And he did say to me, "Jere sapne subah dekhe jande ne aur pure hunde ne." So that's why it was my mission to write the story up with his help. And yes, आपने पहले भी क्वेश्चन पूछा सी कि इनने थोड़े डायलॉग क्यों हैं. I'm sorry मेरी पंजाबी इतनी क्लियर नहीं है पर मैं कोशिश करूँगी. So why do we have such little dialogues? I truly believe as a writer कि actor को acting करनी आनी चाहिए. Normally films dialogue से भरी हुई होती हैं पर acting कैसे करोगे? Body language, eye contact, expressions बहुत ज़रूरी है. And film के लिए हमारा sound जो है, it was really important for us because that's the driving force behind our picture today. बॉलीवुड स्टाइल मूवी बनाई इसका कॉन्सेप्ट बॉलीवुड स्टाइल. क्रिएटिव डायरेक्टर यही है आई थिंक पीटर. उसमें लिखा हुआ था क्रिएटिव डायरेक्शन बाय No. क्रिएटिव डायरेक्टर जो है सैम बारे. सैम. Yes, and I'm the director. सॉरी आपका क्वेश्चन क्या था? मैं ये कह रहा था कि आपने हॉलीवुड स्टाइल लिए हॉरर और थ्रिलर सी काइंड ऑफ जी. चिलिंग स्टाइल. जी तो उसके लिए मैं कह रहा था कि आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे टेक्निकली बहुत साउंड है. हॉलीवुड क्यों लग रही है? बेसिकली हमने
एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना था कि जो एक चैलेंज था हमारे लिए, कुछ अलग करना है, भीड़ से हट के कुछ ऑपोजिट करना है। सो इसको अटेम्प्ट किया हमने। इसका कलर ग्रेड, इसका फ्रेमिंग, इसका एडिट, दिस इज़ नॉट अ रेगुलर सिनेमा, दिस इज़ एक्सपेरिमेंटल सिनेमा। और इसका जो साउंड डिज़ाइन हमने यशराज स्टूडियो से करवाया है, एंड ऑल बिग टेक्नीशियंस जो टॉक्सी का मिक्स कर रहे हैं उन्होंने इस मूवी में मिक्स किया है, एंड ऑल बिग हाउसेस इसके बिहाइंड है इसको बेटर बनाने के लिए। और बिकॉज साइलेंस को एडिट करना एक्सप्रेशन के हिसाब से टू मच डिफिकल्ट। और जो आप चीज़ देख रहे हैं, जो आप रोड रेस का वो रियल में है, VFX नहीं किया है। बहुत हार्ड था हमारे लिए कि जैसे मोस्टली बॉलीवुड फिल्म होती हैं कि नॉर्मली रोड्स एम्प्टी दिखने चाहिए, एम्बियंस वैसा दिखना चाहिए। सो उसको हमने एफर्ट डाल के बनाया है। What next, Peter? मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट हॉरर फिल्म का है, विल प्लान। और लिख दिया सर? सॉरी, लिख दी है क्या? आई थिंक 50-60% हमारा राइटिंग हो चुका है उसकी। It's actually debatable क्योंकि हमारे कंपनी के नीचे we have 14 other scripts ready and सर हॉरर बनाना चाह रहे हैं, मैं एक्शन बनाना चाह रही हूँ। सो इट्स डिबेटेबल, आपकी वोट कैसे रहेगी, हम वैसे बनाएंगे जैसे आप चाहेंगे। पार्ट आएगा इसका? सर इसका पार्ट 2 डेफिनेटली आएगा, बिकॉज दिस इज अ इंट्रोडक्शन। ऑब्सेस 2 का पार्ट आई थिंक हम US में शूट करेंगे। और ईशा को दोबारा रिपीट करेगा? लेट्स सी कॉन्सेप्ट की डिमांड क्या है, कैसे हो सकता है। इसमें एक चीज़ और कम है, वो है सॉन्ग। सॉरी, सॉन्ग होते हैं Songs. फिल्म में, एक आदत होता है। जी तो हमें सॉन्ग्स लेने हैं नेक्स्ट मूवी में कि नहीं? सर, इसमें ओनली 3 सॉन्ग्स हैं और 2 सॉन्ग्स। इंग्लिश सॉन्ग्स वो जो पीछे चल रहे हैं वो तो बैकग्राउंड स्कोर का हिस्सा जी। है। जी 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 बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं, बट एक्चुअली वो लग रहा है एक्चुअली सर आइटम सॉन्ग की डिमांड कर रहे हैं। आदत सी पड़ गई है। ये मैं खुद कहना चाह रहा था एक्चुअली। ये कह गया मेरे को, इसकी बाई नहीं है ना। सर बेसिकली क्या है कि अगर हमने बैकड्रॉप पे रखा, अगर आपने देखा डायलॉग्स बड़े कम है, हमें कुछ अलग करना था कि कुछ विजुअल्स के ऊपर कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सुनाई नहीं जाती हैं, वो दिखाई जाती हैं, उसका एहसास करवाया जाता है। तो उस चीज़ के लिए हमें सारी चीज़ों को लेकर अगर आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ कि एडिट होने के बाद, फुल एडिट होने के बाद हमने सॉन्ग्स ऐड किए। Normally a film बनाने से पहले we make the songs, but यहाँ सब कुछ opposite हुआ है, पूरे rules break किए गए हैं। तो the thing is we didn't feel that it needed an item song in the film. It's a psycho thriller. So if we had broken away from what's happening in the movie, then वो distraction होती। However, film के 6 songs हैं जो already release हो चुके हैं on Jagrad Motion Pictures, हमारे YouTube में. So please listen to them and give it a lot of support. It's really important for us. Throughout the movie, character पे which रहना और psycho film character movie पाना is very difficult. आम character. तो जितना मुश्किल से as a producer, as a hero, एक director वो सब चीज़ें कितने मैम बेसिकली क्या था कि इस तरह के कैरेक्टर और आपको आइज के साथ प्ले करना है, वेरी डिफिकल्ट। और इस कैरेक्टर को प्ले करने में मुझे जो कॉन्सेप्ट की डिमांड थी, मेरे 6 एप्स थे, और जब ये कॉन्सेप्ट सामने आया तो मुझे अपनी बॉडी को तोड़ना पड़ा, मुझे बैली फैट करना पड़ा, देन मेरे शोल्डर और यहाँ पे फैट और 130 kg वेट पुट ऑन किया इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। सो क्योंकि वो एक नॉर्मल पर्सन है, डिप्रेस्ड पर्सन है, जिसको दुनिया में कुछ समझने वाला नहीं है, उसके साथ धोखे होते हैं, और मैटर कुछ भी नहीं है। मैटर ये है कि समवन इज बैड डे एंड समवन इज गुड डे, वो क्लैश होता है, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्सेस। और आपका जो था कैरेक्टर को प्ले करना डिफिकल्ट था, वेरी वेरी चैलेंजिंग था। Can I add to that? क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँगी पीटर को लेके, क्योंकि मैंने देखा है प्रोड्यूस करना और डायरेक्ट करना और एक्ट भी करना. He wasn't going to act in this movie at all. It's just that the script demanded it, and he knew the movie, he knew the script inside out. We did so many auditions, but at the end we honed down on that Peter should play this part. दूसरी बात है कि when he was actually playing, we don't have a very big team.
because it's our first film under this banner. तीन लोग थे that actually drove this force forward. Peter, I, and Rekha ji. What happened on the set was he was chain smoking. He's not a regular smoker anyway. Chain smoking karna, acting karna, produce karna, and managing the crew at the same time. I'm very new to this industry. Peter is not new to this industry at all. Okay, because I'm new, there's only so much I could do. Also, when he came back home, he suffered from high blood pressure for putting on weight, smoking and not sleeping at all. Din raat kaam karte rahe for this movie. When he was under treatment for his high blood pressure, there was a lot of brain defect and he lost a lot of memory. तो जब वापस treatment से आए from Punjab back to Mumbai, he said to me one day, he said, Sam, did we shoot the film? I said, yes, we shot the film. He said, how much is left? I said, edit पे आ गए हैं. He goes, oh. जो बंदा मुझे सुबह उठा के बोलता है मैंने एक सपना देखा था and this is the story, आज मुझे बोल रहा है I can't remember it. I had to sit down every day and recite the script to him. Each scene मैं सुनाती रही. For me, ये मेरे लिए obsessed था. जो सपना इनका था मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि पूरा हो, क्योंकि ये बोल रहे थे कि यह भगवान का सपना है, पूरा करना है. And today this dream has come true and I thank you all for being here today. It means a lot. Thank you. जो नेक्स्ट फिल्म आएगी आपकी उसमें भी आप ऐसे ही डायलॉग नहीं होंगे क्या, उसमें कुछ No, आवरा है? sir, basically this is a concept to concept. ये concept का demand है. Next जो हमारा है वो मास गैंगस्टर का मूवी है and action, mass, thriller, horror. This is our genres. So ऐसे repeat नहीं करेंगे इसको, change करेंगे. और आपके लिए आइटम सॉन्ग भी डाल देंगे. बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है. जी. मदर का कैरेक्टर जी. सो उनकी एक्टिंग देखिए, normally I don't know her as a person because I come from England. तो यहाँ acting करते थे on the smaller screen. I saw one or two scenes of her where she's acting in Ishq Ka Rang Safed. She's wearing a red sari and through his expressions I said yes, let's go with her because she has a very innocent face and that's why we wanted something new for this film. Not a mature face at all. दूसरी बात है, she normally the characters she plays are in saris, makeup, jewelry. वो होता है उनका. इस फिल्म के लिए I stripped her of everything. Okay, कोई भी glamorous नहीं था उनके लिए. जो acting निकाली है पीटर विल्सन ने निकाली है उसमें से निकाल के. We wanted her to experience no glamour, no pampering because the film demanded that and it's really important to stay in that character and that's why she's here today. Okay, actually I had a question. It's more of a curiosity. See, you being the producer, you being the director and you being the lead hero. And you being a director and seeing yourself as the lead hero because as a director you've been having so much in your head and as an actor you want to do a lot of stuff. So it might be clashing sometime or it might be favoring sometime. So I just want to know your experience in that way. I think Sam तुम बताओ. Absolutely not. देखिए, लोगों ने तो बोलना है कि प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने खुद ही अपने आप को प्रेजेंट किया है फिल्म में. बिल्कुल नहीं, because I would not have that in any of my scripts. Okay, if it demands the character, then definitely I would say yes. This film demanded it. The other thing is, अगर प्रोड्यूसर ने अपने आप को दिखाना होता तो 6 pack होते. Oh, I've gone off. Hello, I'll come back. There you go. 6 pack होते, उड़ते बाल होते, present
प्रेजेंटेशन होता, वो पूरा show off होता as a hero. In this film, he doesn't show as a hero. He's a depressed man, bare belly है, grooming तो बिल्कुल नहीं हुई. We didn't groom his hair, we didn't groom his beard. Makeup जो था, he only wore it for the first 4 days. After that, it was normal. We said, let's go normal now. No makeup ऐसा कोई भी नहीं था. He didn't demand it at all. इसलिए मैं बोल रही हूँ, he would fit perfectly for this. बहुत डिफिकल्ट था एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी Exactly. इट्स टू मच. So you enjoyed it? लर्न किया है Exactly. In terms of learning, I'm asking specifically. बट ये था कि अगर हमारा नया प्रोडक्शन हाउस है, लेकिन जो टेक्नीशियंस हैं ऑल भी एक चैलेंज था, बट आप सबको अच्छा लगा, उसके लिए थैंक यू. Well, I just want to say that all the technicians are very high top-notch people in Bollywood. They're very well known. When they were approached for this movie, they all said, "Can we have a look at the snippet first? Because हमारा नाम है, you're very new to this industry, तो हम देखना चाहते हैं आपने क्या बनाया है." And that's the only reason they came with us. But I'm very pleased and I'm very honoured that they took us on. We're very new to this. उन्होंने हमें accept किया and I'm really grateful. उनकी patience भी बहुत थी and it shows. So I'm really grateful to them. थैंक यू. आज आप सबके सामने इस लेडी का मेन मोटिव यही था. मनराज जी से हमारी बात हुई थी और ये इसका बिकॉज दिस इज एक्सपेरिमेंटल सिनेमा एंड नॉट अ रेगुलर. इसको अगर एंजॉय करना है तो फर्स्ट आपको फ्रेम इसलिए करना पड़ेगा, हमें इंगेजिंग रखने के लिए जो भी चीज़ें की. बट हाँ, वन मोर थिंग कि सब लोग इसको प्यार दें आपके माध्यम के जरिए. जो ऑडियंस पंजाब की अवेयर नहीं है वो अवेयर हो, क्योंकि कोई प्रोपोगंडा फिल्म नहीं है, कोई ऐसा कंटेंट नहीं है कि एक हीरो 20 गुंडों को मारकर अपनी हीरोइज्म दिखा रहा है. कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई आइटम सॉन्ग है जो एंटरटेनमेंट करे. मैंने बस एक चीज़ अपने आप को चैलेंज दिया था, आप अलग क्या कर सकते हो. मैटर कुछ भी नहीं है, रोड रेज का है जिसके ऊपर आज तक किसी का मुझे नहीं लगता कि ध्यान गया है. बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो हाईवे पे होते हैं बट वो हमें पता नहीं होता. आई टू आई कॉन्टैक्ट, अगर आप रेड सिग्नल पे हैं, अगर आपके पीछे 4 हॉर्न किसी ने मार दिए, आप फैमिली के साथ हैं, तो जैसे क्रॉस करके जाएगा आप उसको देखोगे जरूर. आई टू आई जो क्रैश है डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपने उसको किस तरीके से लेना है, उस टाइप का कॉन्सेप्ट है. बस अब ये रिलीज हो चुका है, हम ये चाहते हैं कि सब लोग इंजॉय करें. थैंक यू. Sure. So